Hello students, welcome back. I hope you all are safe and healthy. We are studying constitutional design, that is second chapter of our civics, and we have already discussed the definition of constitution as well as why do we need constitution and what was the path for making the constitution. Now we'll be discussing the next topic, that is guiding values of Indian constitution. In this book, we shall study the exact provisions of the Constitution on different subjects. At this stage, let us begin by understanding the overall philosophy of what a Constitution is all about. We can do this in two ways. We can understand it by reading the views of some of major leaders on Constitution, but it is equally important to read what the Constitution says about its own philosophy. This is what the preamble to the Constitution does. Now, before we start this chapter, I'd like to tell you that there are some boxes given in your textbook, plus, along with the name of some leaders, what they have done, this has also been mentioned. Kindly go through them because they are important for you. The dream and the promise. कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या सोचा गया और उसमें क्या वादे किए गए थे. Some of you may have noticed a name missing from the sketches of the makers of the Constitution, Mahatma Gandhi. He was not a member of the Constituent Assembly. Constituent Assembly में जिसमें पंडित मोतीलाल नेहरू और बाकी के दूसरे सदस्यों के बारे में कहा गया है, वहीं पर एक व्यक्ति जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया था, उनका नाम शामिल नहीं है. वो हैं महात्मा गांधी. वो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक भागीदार नहीं थे. He was not a member of the Constituent Assembly, yet there were many members who followed his vision. इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा ना होते हुए भी बहुत सारे दूसरे लोगों ने महात्मा गांधी के विचारों को ध्यान में रखकर इस संविधान की रचना की थी. Years ago, writing in his magazine Young India in 1931, he had spelled out what he wanted the Constitution to do. उन्होंने अपनी किताब यंग इंडिया जो कि 1931 में पब्लिश हुई थी, उसमें उन्होंने लिख दिया था कि संविधान क्या है और क्या उसके अंदर शामिल किया जाना चाहिए. Now here is an extract from his reading. I shall strive for a constitution which will release India from all thraldom and patronage. I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country, in whose making they have an effective voice. An India in which there shall be an high class and low class of people. An India in which all communities shall live in perfect harmony. उन्होंने अपनी किताब के अंदर जो पंक्तियां लिखी थी उसमें उन्होंने यही लिखा था कि भारत एक ऐसा देश बनेगा जहां पर अमीर गरीब नहीं होगा, कोई हाई क्लास या लो क्लास नहीं होगी. देयर शैल बी नो हाई क्लास एंड लो क्लास ऑफ पीपल. कोई हाई क्लास और लो क्लास नहीं होगी, सभी बराबरी से सामंजस्य के साथ में इस देश के अंदर रहेंगे. देयर कैन बी नो रूम इन सच एन इंडिया फॉर द कर्स of untouchability or the curse of intoxicating drinks and drugs. भारत एक ऐसा देश होगा जिसमें छुआछूत की भावना नहीं होगी, लिकर और दूसरी जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स हैं उनका कोई स्थान नहीं होगा. Women will enjoy the same right as men. I shall be satisfied with nothing else. औरतों को मर्दों के बराबर दर्जा मिलेगा. यदि ऐसा भारत होगा तो इसके अलावा मुझे संतुष्ट करने के लिए और कुछ चीज़ें नहीं चाहिए. There are some more extracts. Some have been written by Nehru or some are still from Gandhi's extract. Go through them. They will help you to understand the Constitution more. This dream of an India that has eliminated
inequality was shared by Dr. Ambedkar, who played a key role in the making of Constitution, but he had a different understanding of how inequalities could be removed. जो महात्मा गांधी ने अपने बातों में लिखा था, अपनी किताब के अंदर उन्होंने ये लिखा था कि भारत में अनटचेबिलिटी नहीं होगी, उसी चीज को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जब संविधान की रचना की थी उसके अंदर शामिल किया था। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी बातें लिखी कि किस तरह से भारत के अंदर से इस छुआछूत की भावना को दूर किया जा सकता है। He often bitterly criticized Mahatma Gandhi and his vision. In his concluding speech to the Constituent Assembly, he stated his anxiety very clearly. उन्होंने कुछ जो गांधी जी ने बातें कही थी उनके विरोध में भी उन्होंने बातें कही और आखिरकार संविधान की रचना की। Finally, let us turn to Jawaharlal Nehru giving his famous speech to the Constituent Assembly at the stroke of midnight on August 15, 1947. महात्मा गांधी ने जहां एक तरफ ये कहा था कि भारत एक ऐसा देश बनेगा जिसमें अमीर गरीब नहीं होंगे, छुआछूत की भावना नहीं होगी, औरतों को बराबरी का दर्जा मिलेगा और भी बहुत सारी बातें कही थी, वहीं पर बी आर अम्बेडकर ने भी कुछ अपने तथ्य रखते हुए सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ को बराबरी का दर्जा मानते हुए, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को चेंज करते हुए और भी बहुत सारी जो प्रिंसिपल्स बने थे उनको चेंज करते हुए उन्होंने संविधान की रचना की थी। साथ ही साथ नेहरू जी ने जो 15 अगस्त 1947 को उन्होंने अपनी स्पीच दी थी उसमें उन्होंने एक और अपनी स्पीच के अंदर नई भावनाएं ऐड करी जो कि इस संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड की थी। उन्होंने कहा कि देयर विल बी सस्टेनेबिलिटी, समानता का दर्जा रहेगा, देयर विल बी फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीडम और पावर दोनों ही चीजें होनी चाहिए क्योंकि वो इंसान के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाती हैं। अ सॉवरेन बॉडी रिप्रेजेंटिंग द सॉवरेन पीपल ऑफ इंडिया, उन्होंने ये भी कहा कि जो भी संविधान की रचना कर रहे हैं वो वे व्यक्ति हैं जो कि देश के बारे में, देश के भले के लिए सोचते हुए काम करेंगे। और भी उन्होंने बहुत सारी चीजें कही जिनके अंदर उन्होंने ये और इंक्लूड किया कि इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ द मिलियंस हु सफर। उन्होंने ये कहा कि भारत के लिए सर्विस करना मतलब भारत के उन लोगों के लिए सर्विस करना है जो कि प्रताड़ित है या जिन्हें आज बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे जिनकी मदद से हमारे संविधान की रचना की गई थी। नाउ नेक्स्ट इज द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस तरह से संविधान की रचना हुई, उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें ऐड करी गई जिनकी वजह से भारत को एक बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन मिला, जिसकी वजह से हर एक व्यक्ति, नेता और प्रजा दोनों ही अपने अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ को फॉलो करते हुए देश को सुचारू रूप से चलाने का काम करते हैं। नाउ फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड and guided the freedom struggle and were in turn nurtured by it formed the foundation of India's democracy. बहुत सारे वो बातें जिनकी वजह से भारत के अंदर जो आज़ादी की लड़ाई हुई थी, जिन्होंने उसमें योगदान दिया था, उन्होंने भारत को एक डेमोक्रेसी में परिवर्तित करने में मदद की। These values are embedded in the preamble of Indian Constitution. They guide all the articles of Indian Constitution. The Constitution begins with the statement of its basic values. This is called the preamble to the Constitution. संविधान की जब रचना की जाती है तो उस संविधान के पहले कुछ मेन पॉइंट्स दिए जाते हैं, वो मेन पॉइंट्स प्रियम्बल कहलाते हैं। Taking inspiration from American model, most countries in the contemporary world have chosen to begin their constitution with the preamble. सबसे पहले ये चीज़ अमेरिका में फॉलो की गई थी और उसके बाद में बहुत सारे देशों ने इस चीज़ को, इस प्रियम्बल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन से पहले शामिल किया। Let us read the preamble of our constitution very carefully and understand the meaning of each of its keywords. The preamble of the Constitution reads like a poem on democracy.
It contains the philosophy on which the entire Constitution has been built. It provides a standard to examine and evaluate any law and action of the government. जो प्रियम्बल है वो एक तरह से हमारे संविधान को, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पोएट्री फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में डिस्क्राइब कर देता है। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जितनी मुख्य बातें कही गई थी वो सारी बातें इसके अंदर शामिल हैं। इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड एवेलुएट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। ये हर एक वो लॉ और एक्शन, वो नियम और वो कार्य जो सरकार करती है उसको बनाता भी है और उसके अंदर सुधार भी लेकर आता है। इट इज़ गुड और बैड, इट इज़ द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सही या गलत, ये भारत के संविधान की आत्मा के रूप में काम करता है। नाउ व्हाट एक्चुअली आवर प्रीएम्बल सेज, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. कुछ मुख्य बातें इसके अंदर कही गई हैं, वो हमें बताता है कि हमारा संविधान क्या है। वो क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के तमाम नागरिक, नेता। वी द पीपल ऑफ इंडिया के अंदर नागरिक भी आ गया, नेता भी आ गया और सारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्लूड कर ली गई। कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं वो हैं सॉवरेन। सॉवरेन मतलब हम अपने भारत को एक सुप्रीम राइट देते हैं, वो डिसीजन ले सके। किसके बारे में डिसीजन ले सके? भारत के अंदर होने वाली जितनी भी इंटरनल मैटर्स, एक्सटर्नल और इंटरनल मैटर्स हैं उनके बारे में, अंदर और बाहर जो भी बातें होती हैं भारत के अंदर उनके बारे में निर्णय लेने का हम अधिकार देते हैं। सोशलिस्ट, जहाँ पर बहुत सारे समाज एक साथ जी रहे हैं और उन्हें समाज के अंदर इन अलग अलग जातियों को बराबरी से जीने का हम अधिकार प्रदान करते हैं। जो सरकार है वो बाध्य है कि हर एक नागरिक को बराबरी का दर्जा दे। सेक्युलर, यहाँ पर रहने वाले, बसने वाले हर एक नागरिक को अपना धर्म फॉलो करने की आज़ादी है। एंड द नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक, यहाँ पर जो सरकार बनेगी वो एक डेमोक्रेटिक सरकार होगी, प्रजातांत्रिक सरकार होगी, जनता के लिए काम करने वाली, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार बनेगी। रिपब्लिक, ऐसा भारत होगा जिसमें राजा राज्य नहीं करेगा बल्कि एक इलेक्टेड पर्सन, चुना गया नेता देश के हित के लिए कार्य करेगा। सेकेंड, लिबर्टी, हर एक व्यक्ति को आज़ादी होगी, किस चीज़ की? थॉट की, विचार रखने की, एक्सप्रेशन की, अपनी बात कहने की, बिलीफ की, मान्यता रखने की, फेथ, विश्वास की, और वर्शिप, आज़ादी होगी उसको अपने धर्म की पूजा करने की। इक्वालिटी, सोशली और इकोनॉमिकली हर एक व्यक्ति को बराबरी का दर्जा मिलेगा। फ्रेटर्निटी, हमें यह आज़ादी होगी कि हम पूरे समाज में एक परिवार की तरह रहें और एक दूसरे का साथ देते रहें। एंड साथ ही साथ में हम एक और बात कहते हैं कि वो है जस्टिस। यहाँ पर हर एक व्यक्ति कानून की नज़रों में बराबर होगा, उसे बराबरी का दर्जा दिया